online classes. Students, one thing you always remember, these classes have been organized for the benefit of you people and also just maintaining the pace of your academics. Even though we are not meeting face to face, but we are meeting every day virtually. And we are sharing our ideas, our problems, and just trying to develop a new way of learning. Students, this is an opportunity to just learn some experience. You also having the time to just prepare yourself to make your academics strong. Nowadays you are staying at home, you are having enough time to work out on your weaknesses, the areas, the subjects, the topics that are feeling difficult for you. You may emphasize more and more attention on those topics. I am not talking about social science, I am not talking about history, political science, geography or economics. I am talking about all the subjects. For you people, all the subjects are having equal importance. If you are giving more emphasis upon a particular subject and neglecting other subjects, it's a wrong way of studying. It is a better way to just prepare our planning and accordingly you work out. No doubt, if you are having some difficulty in a particular subject, you have to give more time on that subject. But doesn't mean that you have to ignore, because at the time of examination, your report card will having the weightage of equal marks for every subject. So you have to perform exceptionally well in all the subjects to get exceptionally well result. So let's begin. We were discussing about the rise of nationalism in Europe, and we have just gone through how the idea of nationalism grew. We have seen the utopian vision that has been reflected through the print painted by Frederick Chopin. We have seen how the societies went into the great change. In the influence of Industrial Revolution, the new aristocracy has been challenged by the growing middle class. Then after we have seen revolutionaries, role of French Revolution, Napoleon. We have also seen conservatism, Duke Metternich, and we have seen the age of revolution, very much important. A very much important time period that has prepared the stage for the nationalism in Europe. We have seen Greek War of Independence. We have gone through the Frankfurt Parliament, July Revolution in France, Revolution of 1830 in France. So a number of revolutionary activities were going on, and in due course of time it was resulted in the unification of Italy, unification of Germany that we have discussed. One more important nation was there. It was Britain. Today we are going to discuss how nationalism emerged in Britain. Dear students, if you remember, whenever we have discussed about rise of nationalism, in the case of Italy, in the case of Germany, in the case of Greek War of Independence, what we have noticed? We have noticed that every time there is a bloodish struggle, खून खराबा, संघर्ष, जिसमें जाने गई जान माल का नुकसान हुआ और युद्धों से ही इसकी परिणति हुई. परंतु if you have gone through your book, textbook, NCERT textbooks, the topic
is written as the strange case of Britain. Now, in the case of Britain, what is the strange thing? Strange क्या है? हमने ये क्यों नहीं पढ़ा कि the strange case of Germany, the strange case of Italy, the strange case of Greece? नहीं पढ़ा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं the strange case of Great Britain। देखिए इसका क्या जवाब है? Unlike the unification of Italy, unification of Germany and Greek War of Independence, nationalism took its hold in Britain through a steady process, and that has got its root from the ethnic composition of that English island. Remember, England is an island. यह एक टापू है और संभवतः यही उसकी ज्योग्राफिकल जो स्थिति है जिसके कारण इंग्लैंड नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन आने से बच पाया। Apart from England, all the other big countries in Europe were to the feet of Napoleon Bonaparte during 1804 to 1815. और कहा जाता है कि नेपोलियन के पतन का, नेपोलियन की डिफीट का, नेपोलियन की हार का एक बड़ा कारण उसकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वो इंग्लैंड को भी अपने अधिकार में ले ले। विस्तार से कभी मौका मिलेगा, आगे क्लासेस में कभी पढ़ने का अवसर मिले तो जो पढ़ेंगे आपको वहां मिलेगा। खैर, हम लोग वापस अपने बिंदु पे आते हैं। तो स्टेट केस के विषय मैंने कहा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड टू इट्स एथनिक कंपोजिशन। एंड आई हैव सेड दैट जब मैं कह रहा हूं इंग्लैंड इंग्लैंड, तो मैं इंग्लैंड कहने का मतलब मैं उस आइलैंड की बात कर रहा हूं, इंग्लिश आइलैंड। अब इस आइलैंड की एथनिक कंपोजिशन क्या है? जैसा मैंने कहा कि यहां पे जो नेशनलिज्म की जो जड़ें हैं वो उसके सामाजिक संरचना में निहित है, एथनिक कंपोजिशन में। जो डाइवर्स कम्युनिटीज थी जिनकी एथनिक कंपोजिशन याद कीजिए, हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में, वहां पे हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम हमने पढ़ा। While discussing about the ethnic, it means that people having their distinct language, distinct identity, distinct culture. I'm talking about that ethnic composition. So ethnic composition of England is this way. There were 4 major ethnic communities living in England, means English island. इंग्लैंड में बात कर रहा हूं तो मैं बात आज के देश की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक ग्रुप, इंग्लिश एथनिक ग्रुप है, उसका नाम इंग्लिश एथनिक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं बात करूंगा एज अ ज्योग्राफिकल एरिया तो मैं बात करूंगा इंग्लैंड एक आइलैंड के रूप में, नेशन के रूप में नहीं। यही तो हमें पढ़ना है, नेशन बिल्डिंग, नेशनलिज्म के साथ नेशन की बिल्डिंग। तो बहुत करेंगे English, Wales, Scot and Irish. These were the 4 major ethnic groups living in England. Out of these 4, English emerged more dominant and powerful in every sphere of life. Grew in wealth, importance and power. Who? English. ये 4 एथनिक ग्रुप में से इंग्लिश जो ग्रुप थी वो मजबूती से उभरी। ये वेल्थ में यानी पैसे के मामले में, इंपॉर्टेंस और पावर, महत्व जो इनके पास थे, समाज में इनका बढ़ने लगा, दबदबा इनका बढ़ने लगा। Now, under that particular circumstances, when a particular community dominates, started dominating, it is very much obvious that particular community tried to influence other community, tried to just dominate
the other communities so as the English has did. इन्होंने भी वही किया, able to extend its influence over the other nations of the islands. अब यानी कि over the other nations, nations मैंने लिखा है, उसका तात्पर्य यह है इस ethnic communities को मैं डिफाइन कर रहा हूं। गौर कीजिएगा, अगर आप नेशन का डेफिनेशन याद होगा तो नेशन refers to, it doesn't mean any political boundary. It is a kind of feeling that associate people to a particular land, a particular area. That kind of term is used. तो यहाँ वेल्स की बात कर रहे हैं, स्कॉट्स की बात कर रहे हैं, आयरिश की बात कर रहे हैं, तो इनकी अपनी आइडेंटिटी है जिसके कारण ये ग्रुप है। ये इंग्लिश एक आइलैंड में रह रहे हैं, इंग्लैंड नाम के आइलैंड में, जमीन का टुकड़ा। जैसे इंडिया की कैसे बात करें, अंग्रेजों के आने के पहले भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि इंडिया क्या था, एक मिट्टी का टुकड़ा था, एक विशाल भूभाग जिसपे कई राजा रजवाड़े राज करते थे, सबके अपने अपने नियम कानून थे। आपने जर्मनी के केस में देखा, बिफोर नेपोलियन conquered that particular German territory, it was divided into more than 300 small kingdoms. So this was the same condition over there. So over there in English island, 4 different communities were dominating, and out of 4, this English word started becoming more influential and dominating over the others and trying to extend its influence over the other communities. और इसी का परिणाम हुआ 1707 में। This English community, this particular English notion, they had just influenced the Scottish, that particular area, Scotland, and by the Act of Union in 1707, वहां पर एक उन्होंने जबरन समझौता किया, जबरन एग्रीमेंट किया स्कॉटलैंड के साथ, जिसको कहते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन, और इसके द्वारा उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया। अब क्या हुआ, ये जो इंग्लिश है यानी कि इंग्लैंड की जो बात, जो इलाका इंग्लिश डोमिनेट था वो इंग्लैंड कहला रहा था उस समय। पूरा भी इंग्लैंड पूरे भूभाग को नहीं कह रहे थे, उस इलाके को। अब इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस स्कॉट पे मिलाया और स्कॉट का एरिया उनका हुआ, तो अब ये बन के आया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, इंग्लैंड यानी इंग्लिश जो एरिया वाले लोग थे, उन्होंने स्कॉटलैंड को बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा अपने में मिला करके क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की सूचना, यानी एक कांटा निकला इसके साथ मर्ज कर गया। जहां तक वेल्स की बात है, यहां से मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं, कोई उठा पटक नहीं। These are a part of that English शुरू से, उनमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आयरिश से होगी, पहले स्कॉटलैंड और आयरिश। पहले देखते हैं कि इस एक्ट ऑफ यूनियन का रिजल्ट क्या हुआ। देखिए, इस एक्ट ऑफ यूनियन के रिजल्ट के बाद the English was able to impose its influence and the growth of a British identity. इसका रिजल्ट स्कॉटलैंड के ऊपर इंग्लिश ने अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को थोप दिया और स्कॉटलैंड के ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल सप्रेस कर दिया, समाप्त कर दिया। इन्होंने दूसरे शब्दों में इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन नाउ बिकम डोमिनेंट इन स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड की अपनी आइडेंटिटी समाप्त हो गई। एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, 1618 ब्रिटेन के केस में 1618 का जो ईयर है वो एक रेड लेटर डे है, और केवल इंग्लैंड के लिए नहीं, ये पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात आती है उसमें भी 1688 का ईयर एक सिग्निफिकेंट ईयर है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर ईयर देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड दैट वाज कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और दैट वाज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन दैट हैड हैपेंड इन 1688, great change was there. British Parliament came in power, came in existence. Before that, there was absolutist monarchy.
But after the 1688 revolution, that is called the Great Bloodless Revolution or Glorious Revolution. ब्लडलेस इसलिए कहते हैं कि इसमें खून की एक बूंद भी नहीं बही और सत्ता परिवर्तन हो गया। इंग्लैंड का राजा भाग गया, नई राजशाही आई और कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन वो राजशाही आई। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, तो एक बहुत बड़ी चीज थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट केम इन एग्जिस्टेंस। तो अब ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, दैट वाज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। अभी उस इंग्लिश पार्लियामेंट में अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन इस एक्ट ऑफ यूनियन के बाद अब स्कॉटलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव होते वो भी अब इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव थे। मींस कि नाउ इंग्लिश पार्लियामेंट इटसेल्फ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू इन्फ्लुएंस इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ओवर दैट होल आइलैंड। समझ में आ रही है ये बात? गौर कीजिएगा, आप अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। यहां स्टेज बस इतना ही है कि एथनिक जो इन्फ्लुएंस है चार एथनिक ग्रुप में से कैसे इंग्लिश ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। एक वो एक्ट बनाना और एक्ट ऑफ यूनियन, उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट एक हमने देखा कि अब इंग्लिश आइडेंटिटी, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश सिस्टम नाउ इम्पोज ऑन स्कॉटलैंड एंड स्कॉटलैंड की अपनी आइडेंटिटी खत्म और इंग्लिश पार्लियामेंट में अब इंग्लिश डोमिनेंस होने लगा, इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन यानी इंग्लिश मेंबर ज्यादा है। एक और मींस दैट इंग्लिश पार्लियामेंट व्हिच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688, मैंने अभी क्लियर किया था, was henceforth the dominating by the English members। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। एक एथनिक कंपोजिशन, एक्ट ऑफ यूनियन, तीसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल, क्योंकि अब ये इंग्लिश मेंबर से डोमिनेट करेगी तो अब ये इंग्लिश कल्चर को, इंग्लिश ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करेगी। तो अब मेजर एरिया स्कॉटलैंड के साथ हो गया। अब कौन बची है? आयरिश। दे गॉट अ मेजर रेसिस्टेंस फ्रॉम आयरलैंड। तो अब आगे हम देखेंगे कि कैसे आयरलैंड के साथ ये मसला आगे बढ़ता है। Now let's see about the Ireland. We have seen Scotland has been already become the part of that English nation, means English dominant area. It was merged through the Act of Union that was signed in 1707. From here you may be asked one more question: when did the Act of Union was made or Act of Union was signed? One marks or between which community, which nations, you may be asked that it was signed. So you have to be very much careful about English community or English ethnic group or Scottish group or English or Scotland. Now see about Ireland. What I have said, Ireland is a major issue because the ethnic composition of Ireland itself is very typical. Two groups were dominating over here, that is Catholics and Protestants. Interestingly, Catholics were in majority, where in Ireland, and Protestants were in minority. यानी ये कम संख्या में थे या अधिक संख्या में थे। Interestingly, इस इंग्लिश नेशन की जब हम बात करते हैं, इस अभी हम लोगों ने देखा था कि 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी इंग्लैंड में, जो सत्ता परिवर्तन हुई थी, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन देयर वाज अ रूल, इवन टुडे द रूल इज देयर इन इंग्लैंड दैट no person belongs to Catholic could be the king of England. कैथोलिक समुदाय का कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड का राजा नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें 1688 के रेवोल्यूशन को पढ़ना।
इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि बिफोर दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन देयर वाज अ रूलर हु फॉलो कैथोलिक सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वास्तव में क्रिश्चियनिटी के ही दो विंग हैं, परंतु इन दोनों की विचारधाराएं ट्रेडिशंस में कई सारे अंतर हैं। Catholics were traditional, having traditional approach and mindset related to their religion. They were very much orthodox in nature, while Protestants were demanding the changes as per the time in their religious values and traditions. और एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को शुरू करने में जिनका रोल था, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग सीनियर। इन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए जो कैथोलिक धर्म में, जो कैथोलिक सेक्ट के अंदर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, ऑर्थोडॉक्स नेचर थी, जिसमें परिवर्तन की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, और उस समय जो चर्च की डोमिनेशन थी, क्लर्जी क्लास की जो डोमिनेशन थी काफी बढ़ चुकी थी। They were just leading the society, but according to their own ways. They were misinterpreting the Bible. They were indulged in malpractices. And for that, they were just giving their logics that it has been granted in Bible. Take one example. I usually just give such kind of examples. जैसे मैंने कई बार बताया हुआ हूँ आप लोगों को कि वहाँ क्या परंपरा थी उस समय कि चर्च ये कहते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगर आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में, तो वहां भी इस बात की चर्चा निश्चित रूप से नहीं है। तो वहां चर्च का रोल क्या था, क्लर्जी का रोल क्या था? क्यों यूरोपियन सोसाइटी ने अपने फर्स्ट स्टेट यानी जो क्लर्जी क्लास है, नोबल क्लास, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। फ्रांस में बूरबन डायनेस्टी 300 साल के आसपास राज कर रही थी। अचानक क्या हुआ कि लोगों ने उस बूरबन डायनेस्टी लुई 16 को उखाड़ के फेंक दिया। एक्चुअली वहां चर्च का भी रोल है। क्यों? प्रिविलेज क्लास को समाप्त करने की बात है, तो उस समय चर्च का रोल के रूप में थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। ऑन दैट टाइम चर्च वाज जस्ट सेलिंग द राइट्स दैट इफ एनीवन इज विशिंग टू बुक his or her seat in the heaven after the death, they may visit the church, they may give a certain amount in the form of donation, and church will issue a letter of authority that the person will be given a seat in the heaven after his or her death. Could you believe it? This was the tradition and people were following, and church was referring that it is given in Bible, and they were doing as per the Bible. One more example. कोई किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पाप किए हैं और उसे अब रियलाइजेशन है कि वो पाप से मुक्त होना चाहता है, तो वो चर्च को विजिट करता है। वहाँ चर्च में मौजूद जो पादरी होते हैं उन्हें बताता कि मैंने कुछ पाप किए, मैं उससे मुक्त होना चाहता। तो चर्च के अंदर जो बैठा वो पादरी है, जो वास्तव में वो चर्च को रिप्रेजेंट करता है, वो ये बताता कि ठीक है तुम्हारे पाप इस प्रकार के, तुम इतना डोनेशन दो, इतना पैसा दो, तो तुम्हें एक लेटर हम देंगे, जो लेटर that forgive your sin, यानी तुम्हारे पापों से तुमको मुक्त कर देगी। Could you believe it? It is possible. और इस बात के लिए हमेशा वो जिक्र करते थे, it is referred in Bible. अब आप बोलेंगे सर लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते थे? Actually on that time few things are there. सोसाइटी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना। It was not very much easy to read Bible on that time. There were two reasons. Number one, on that time basically Bible was in the form of manuscripts, handwritten records का रूप में, और it was not in printed form. Manuscripts के फॉर्म में होती थी, तो इसके जो एडिशंस थे काफी लिमिटेड थे. It was not available for everyone. It was very much costly. नंबर वन, तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. प्रिंटिंग प्रेस के कारण ही ज्ञान का एक नई जो एक प्रकाश फैली पूरी दुनिया में. जो किताबें आपके पास है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सीबीएसई क्लास 10 में हिस्ट्री की एक बुक, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो वही टेक्स्ट यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ बंदा पढ़ रहा होगा. यूनिफॉर्मिटी है, और वो इजीली अवेलेबल अगर हैंड रिकॉर्ड होती तो काफी समय लगता, काफी एक्सपेंसिव होता. उसको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में भी करना है, तो प्रिंट नहीं
होने के कारण वो चीजें काफी महंगी थी। और दूसरी बात, that particular Bible was written in classical Hebrew language. That was the language that was not known to common people. It was classical language. जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, in India you people have been given Sanskrit classes up to 10, no doubt. You may change in class 10, you may opt Hindi, but up to 10 you may study Sanskrit, and after that also you may opt Sanskrit. What do you think? If you read Sanskrit up to class 10, are you able to read Vedas? It is also written in Sanskrit. No, you can't. Because देखिए, जो संस्कृत आप पढ़ते हैं that is a communicative संस्कृत, एक सामान्य बोलचाल की भाषा सीखने में वो सहायक है। लेकिन मैं जिस संस्कृत की बात कर रहा हूँ, जिस वेदों में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है, वो क्लासिकल संस्कृत है। उस संस्कृत की समझ के लिए आपको संस्कृत का गहरा ज्ञान होना पड़ेगा, उसके व्याकरण की गहरी समझ होनी पड़ेगी। तो वो आम बोलचाल की भाषा वाली संस्कृत से बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से क्लासिकल हिब्रू लैंग्वेज काफी टिपिकल लैंग्वेज थी। इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट नॉट अ कॉमन लैंग्वेज। इन दो कारणों से लोग बाइबल को नहीं पढ़ पाते थे। बट इट वॉज द मार्टिन लूथर किंग, उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया, और बाइबल को ट्रांसलेट कर 95 थीसिस के रूप में उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के उसके दरवाजे पे ठोक करके और चर्च को चैलेंज किया था कि नाउ टेल वेयर इट हैज बीन रिटन, कि चर्च को यह अधिकार है पाप मुक्ति पत्र देने का, स्वर्ग में सीट बुक करने का अधिकार है। दैट वाज द रेवोल्यूशन। तो जो मार्टिन लूथर किंग हैज प्रोटेस्टेड द रोमन कैथोलिक चर्च दैट वाज फॉलोइंग द कैथोलिज्म, तो ये ग्रेजुअली जो मार्टिन लूथर किंग के जो फॉलोअर्स हैं, they were come to know as Protestants because they were emphasizing for the reforms in traditional Christianity. Means बदलते हुए समय के साथ नए ज्ञान के आलोक में जो परंपराएं हैं क्रिश्चियनिटी में, उसमें परिवर्तन होनी चाहिए। जबकि कैथोलिज्म कहती है बिल्कुल नहीं, जो ट्रेडिशनल है, जो ऑर्थोडॉक्स है हमारा, हम उसी को फॉलो करेंगे। इस पे दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, और यही मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के जनक बने, एंड द फॉलोअर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, मार्टिन लूथर किंग वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। और यही है क्रिश्चियनिटी के अंदर जो नए सेक्ट आए, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। तो इन 1688 आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, वहां पे ये नियम बन गया कि कोई भी प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड का राजा नहीं बनेगा, क्योंकि during that particular time the king was supporting Protestant, and whoever raised the voice against the ethics of Protestants, they were punished very severely, they were killed. तो इस प्रकार की परिस्थिति के बाद 1688 के रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में ये नियम बना कि वहां राजा केवल और केवल कॉन्वर्ट प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी के होगा। अब देखिए, इंग्लैंड वाज हैविंग इट्स ओन इंटरेस्ट इन Ireland, और इंग्लैंड was following Protestant religion और Protestant sect। तो इन्होंने क्या किया, इसी चीज का इस्तेमाल किया। यहाँ देखिए, कैथोलिक्स मेजॉरिटी में है, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में कहाँ, आयरलैंड में। बट इंग्लिश हैज सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट द कैथोलिक्स। कैथोलिक्स के खिलाफ प्रोटेस्टेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, और कई सारे रिवोल्ट हुए इसमें। प्रोटेस्टेंट्स हैज रिवोल्टेड, इस कम्युनिटी के लोगों, सॉरी कैथोलिक्स कम्युनिटी के लोगों ने कई बार रिवोल्ट किया, बट एवरी टाइम विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश पावर द प्रोटेस्ट ऑफ कैथोलिक्स वर सप्रेस्ड, एंड फाइनली जो लास्ट जो रिवोल्ट हुई, जो नोटेबल रिवोल्ट थी, वो वुल्फ टॉने ने किया फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोलिक्स। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सप्रेसिंग दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट इन 1801, finally Ireland was forcibly incorporated in England
मीन्स आयरलैंड को जबरन इंग्लैंड का हिस्सा बना लिया गया। और इस प्रकार से अब आयरलैंड के ऊपर भी इंग्लिश कल्चर, नाउ अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब हर जगह इंग्लिश कल्चर की बात, इंग्लिश फ्लैग, इंग्लिश नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज, पूरे इस आयरलैंड पे, जो इंग्लैंड नाम का आयरलैंड था, उस पे थोप दिया गया। दिस वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। दिस वाज द स्ट्रेंज केस। आपने सारी जगह देखा था कि अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए नेशन स्टेट्स बनते हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, दे डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर ओन आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां एक डोमिनेंट जो एक कम्युनिटी है, एथनिक ग्रुप है, वो अपनी इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ाती है कि अदर एथनिक ग्रुप्स को अपने अंदर शामिल करती है, उसके टेरिटरी को शामिल करती है और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को कंप्लीट करती है। दिस इज द थिंग्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहां ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि 1801 में आयरलैंड के इंग्लैंड में मिलाने के साथ ये समस्या समाप्त हो गई। There was a great tussle that was continued between England and Ireland for the another 100 years. ये अभी 20वीं शताब्दी तक चल रही थी, ये संघर्ष चलती है। और आयरलैंड के फिर दो भाग भी हुए। ये भी इंटरेस्टिंग केस है, देखो आपको नहीं पता। तो ये संघर्ष है, देखिए राष्ट्रीयता की जो भावना होती है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, इट कैन नॉट बी सप्रेस्ड फोर्सफुली। यू कैन नॉट सप्रेस दिस आइडिया, बिकॉज ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि जिसको आप पकड़ लेंगे, जिसको आप मार देंगे, जिसको आप खत्म कर देंगे। ये आइडिया है, विचारों में जीवित होती है, भावनाओं से जीवित होती है, फीलिंग से एसोसिएटेड होती है। और ये विचार, ये भावनाएं, ये फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड होते हैं डिफरेंट मीडियम के थ्रू, चाहे वो पेंटिंग हो, पोएट्री हो, डांस हो, ड्रामा हो, फोकलोर्स हो, इवन कि आप जो इमेज बनाते हो वो वहां से आती है। रिमेंबर फ्रेडरिक सॉरी, रिमेंबर रोमांटिक नेशनलिज्म, जो रीजनिंग को अलग करती है, वो बोलती नहीं हम रीजनिंग पे एम्फसाइज नहीं करते, हम एम्फसाइज करते हैं कल्चरल डायमेंशंस पे, हम एम्फसाइज करते हैं लोगों के ट्रेडिशंस पे, वो यूनिटी को लाती है। तो हमने देखा था कि रोमांटिक नेशनलिज्म वाज आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग द नेशनलिज्म। ये आपका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है। अभी मैंने जो जिक्र किया रोमांटिक नेशनलिज्म का, एक्चुअली द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी are going to discuss, it is about related to that, visualizing the nation. Visualizing the nation means how now the abstract idea of nation, जो देखिए देश को आप कैसे व्यक्त करेंगे, उसकी कोई पिक्चर खींचेंगे नहीं खींच सकते, तो देश को आप कैसे दर्शाएंगे? इट इज एन आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे आप पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउ, जिसमें आप पढ़ते हैं द थिंग्स दैट वी कैन फील, दैट कैन टच, आप टच कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? जैसे आप पढ़ते हैं बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ये क्या है? यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि मिठास क्या है। जिस व्यक्ति को मिठास का मीठा स्वाद का अंदाजा नहीं, वो मिठास की बात नहीं समझ सकता। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ नेशन हैज बीन रिफ्लेक्टेड थ्रू द आइडियाज। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? तो रिफ्लेक्ट करेंगे पेंटिंग के थ्रू, डांस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू। हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन एलिमेंट्स।